और HP Ink Advantage वायरलेस प्रिंटर्स। आज अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान बराक ओबामा जी हमारे साथ हैं। पिछले कुछ महीनों से मन की बात मैं आपसे करता आया हूं, लेकिन आज देश के भिन्न भिन्न कोने से बहुत से लोगों ने सवाल पूछे हैं, लेकिन ज्यादातर सवाल राजनीति से संबंधित है, विदेश नीति से संबंधित है, आर्थिक नीति से संबंधित है, लेकिन कुछ सवाल वो हैं जो दिल को छूने वाले हैं। और मैं मानता हूं कि आज हमें उन सवालों को स्पर्श करने से हम देश के कोने कोने में एक सामान्य मानवीय तक पहुंच पाएंगे। और इसलिए जो पत्रकार वार्ताओं में उठाए जाने वाले सवाल हैं या जो मीटिंगों में चर्चा में आने वाले सवाल हैं, उसके बजाय जो दिल से निकलने वाली बातें हैं उसको अगर हम दोहराते हैं, उसको अगर गुनगुनाते हैं तो एक नई ऊर्जा मिलती है। और उस अर्थ में मैं समझता हूं कि ये सवाल मेरे दृष्टि से ज्यादा अहम रखते हैं। आप लोगों को मालूम है, कुछ लोगों के मन में सवाल उठता है, बराक का अर्थ क्या है? तो मैं जरा ढूंढ रहा था कि बराक का अर्थ क्या है। तो स्वाहिली भाषा जो कि अफ्रीकन कंट्रीज में प्रचलित है, स्वाहिली भाषा में बराक का मतलब है वह जिसे आशीर्वाद प्राप्त है, वन हु इज ब्लेस्ड। मैं समझता हूं ये अपने आप में बराक के नाम के साथ एक बहुत बड़ा तोहफा भी उनके परिवार ने उनको दिया है। अफ्रीकन कंट्रीज उबंटू के प्राचीन विचार का अनुकरण करती आई है। यह विचार मानवता में एकजुटता का विचार है। और वो कहते हैं, आई एम बिकॉज वी आर। मैं हूं क्योंकि हम हैं। मैं समझता हूं सदियों का भी अंतर है, सीमाओं का भी अंतर है, उसके बावजूद भी वही भाव जो भारत में हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वही भाव दूर सुदूर अफ्रीका के जंगलों से भी उठते हैं। तो ये कितनी बड़ी विरासत हम मानव जात के पास हैं जो हमें जोड़ती है। जब हम महात्मा गांधी की चर्चा करते हैं तो हमें हेनरी थोरू की बात याद आती है, जिनसे महात्मा गांधी डिसोबीडियंस सीखे थे। और जब हम मार्टिन लूथर किंग की बात करते हैं या ओबामा की बात करते हैं तो उनके मुंह से भी महात्मा गांधी का आदरपूर्वक उल्लेख सुनने को मिलता है। यही बातें हैं जो विश्व को जोड़ती हैं। आज बराक ओबामा हमारे साथ हैं। मैं पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ हमें बताएं। बाद में जो सवाल आए हैं, वो सवाल जो मेरे लिए सवाल आए हैं उसका जवाब मैं दूंगा। जो बराक के लिए सवाल आए हैं उनका जवाब बराक देंगे। तो I request President Barack Obama to say a few words. Namaste. Thank you, Prime Minister Modi, for your kind words and for the incredible hospitality you've shown me and my wife Michelle on this visit. And let me say to the people of India how honored I am to be the first American president to join you for Republic Day. I'm told this is also the first ever radio address by an Indian Prime Minister and an American President together, so we're making a lot of history in a short time. Now, to the people of India, listening all across this great nation, it's wonderful to be able to speak to you directly. We just came from discussions in which we affirmed that India and the United States are natural partners because we have so much in common. We're two great democracies, two innovative economies, two diverse societies dedicated to empowering individuals. We are linked together by millions of proud Indian Americans who still have family and carry on traditions from India. And I want to say to the Prime Minister how much I appreciate your strong personal commitment to strengthening the relationship between these two countries.
People are very excited in the United States about the energy that Prime Minister Modi is bringing to efforts in this country to reduce extreme poverty and lift people up, to empower women, to provide access to electricity and clean energy, and invest in infrastructure and the education system. And on all these issues, we want to be partners because many of the efforts that I am promoting inside the United States to make sure that young people get the best education possible, to make sure that ordinary people are properly compensated for their labor and paid fair wages and have job security and health care. These are the same kinds of issues that Prime Minister Modi, I know, cares so deeply about here. And I think there's a common theme in these issues. It gives us a chance to reaffirm what Gandhiji reminded us should be a central aim of our lives, and that is we should endeavor to see God through service of humanity, because God is in everyone. So these shared values, these convictions, are a large part of why I'm so committed to this relationship. I believe that if the United States and India join together on the world stage around these values, then not only will our peoples be better off, but I think the world will be more prosperous and more peaceful and more secure for the future. So thank you so much, Mr. Prime Minister, for giving me this opportunity to be with you here today. Barack, the first question comes from Raj from Mumbai. उनका सवाल है, अपनी बेटियों के लिए आपके स्नेह के बारे में सारी दुनिया जानती है। अपनी बेटियों को आप भारत के बारे में अपने अनुभव कैसे बताएंगे? क्या आप उनके लिए कोई खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं? Well, first of all, they very much wanted to come. They are fascinated by India. Unfortunately, each time that I've taken a trip here, they had school and they couldn't leave school. And in fact, Malia my older daughter had exams just recently. So they are fascinated by the culture and the history of India, in part because of my influence, I think. They are deeply moved by India's movement to independence and the role that Gandhi played in not only the nonviolent strategies here in India, but how those ended up influencing the nonviolent civil rights movement in the United States. So when I go back, I'm going to tell them that India is as magnificent as they imagined, and I am quite sure they're going to have to that they're going to insist that I bring them back the next time I visit. It may not be during my presidency, but afterwards they'll definitely want to come and visit. And I will definitely do some shopping for them, although I can't go to the stores myself, so I have to have my team do the shopping for me. And I'll get some advice from Michelle because she probably has a better sense of what they would like. बराक ने कहा कि वो बेटियों को लेकर आएंगे। मेरा आपको निमंत्रण है, राष्ट्रपति के कार्यकाल में भी आए या राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद आए, भारत आपका और आपकी बेटियों का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। मुझे एक सवाल पुणे से सानिका दीवान जी ने पूछा है, महाराष्ट्र पुणे से। उन्होंने मुझे पूछा है कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शुरू किया है, क्या उसमें भी आपने अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा की मदद मांगी है क्या? सानिका, आपने अच्छा सवाल पूछा है। भारत में सेक्स रेशियो के कारण एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है। 1000 लड़कों के सामने लड़कियों की संख्या कम है और उसका मूल कारण लड़के और लड़की के प्रति देखने का हमारा जो रवैया है वो दोषपूर्ण है। प्रेसिडेंट ओबामा से मैं मदद मांगू या न मांगू, उनका जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा है। जिस प्रकार से वो अपनी 2 बेटियों का लालन पालन करते हैं, जिस प्रकार से अपनी 2 बेटियों के लिए वो गर्व करते हैं, हमारे देश में भी कई जगह पे जब हमें कई लोगों से मिलना होता है
तो परिवार में उनको कोई बेटा नहीं होता है, सिर्फ बेटियां होती हैं और इतने गौरव से बेटियों को बड़ी करते हैं, इतना गौरव देते हैं, वही सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैं समझता हूं ये प्रेरणा ही हमारी ताकत है। और आपने सवाल पूछा है तो मैं कहना चाहूंगा कि बेटी बचाना, बेटी पढ़ाना ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है, सांस्कृतिक कर्तव्य है, मानवीय जिम्मेवारी है, इसको हमने निभाना चाहिए। बराक, आपके लिए एक क्वेश्चन है। द सेकंड क्वेश्चन फॉर प्रेसिडेंट ओबामा कम्स थ्रू ईमेल। डॉक्टर कमलेश उपाध्याय, ए डॉक्टर बेस्ड इन अहमदाबाद, गुजरात। आपकी पत्नी मोटापे और डायबिटीज जैसी स्वास्थ्य की आधुनिक चुनौतियों से निपटने की दिशा में व्यापक सामाजिक कार्य कर रही है। भारत में भी ये चुनौतियां तेजी से बढ़ रही है। क्या आप और फर्स्ट लेडी, आपका कार्यकाल राष्ट्रपति के नाते समाप्त होने के बाद इन चुनौतियों को निपटने के कार्य के लिए भारत आएंगे, जैसे बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स भारत में स्वच्छता को लेकर के काम कर रहे हैं, आप भी डायबिटीज और मोटापेपन के लिए काम करेंगे क्या? Well, we very much look forward to partnering with organizations and the government and non-governmental organizations here in India around broader public health issues, including the issue of obesity. I'm very proud of the work that Michelle has done on this issue. We're seeing a worldwide epidemic of obesity, in many cases starting at a very young age. Part of it has to do with the increase in processed foods, not naturally prepared. Part of it is the lack of activity for too many children. And once they're on this path, it can lead to a lifetime of health challenges. And so this is an issue that we'd like to work on internationally, including here in India, and it is part of a broader set of issues around global health that we need to address. The Prime Minister and I have discussed, for example, how we can do a better job in dealing with issues like pandemic and making sure that we have good alert systems so that if a disease like Ebola or a deadly flu virus or polio appears, that it's detected quickly and then treated quickly so that it doesn't spread. And the public health infrastructure around the world needs to be improved. I think the Prime Minister is doing a great job in focusing on these issues here in India. And India has a lot to teach many other countries who may not be advancing as rapidly in improving this public health sector. But it has an impact on everything, because if children are sick, they can't concentrate in school and they fall behind. It has a huge economic impact on the countries involved. And so we think that there's a lot of progress to be made here, and I'm very excited about the possibilities of continuing this work even after I leave office. मुझे एक सवाल श्रीमान अर्जुन ने पूछा है और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। उन्होंने पूछा है कि मैंने व्हाइट हाउस के बाहर एक पर्यटक के रूप में आपकी एक पुरानी फोटो देखी है, जब आप बीते दिनों सितंबर में वहां गए तो कौन सी बात आपके दिल को छू गई? ये बात सही है कि मैं जब पहली बार अमेरिका गया था तो व्हाइट हाउस जाना तो हमारे नसीब में नहीं था। तो व्हाइट हाउस से दूर एक लोहे की बहुत बड़ी जाली लगी हुई है, तो हम जाली के बाहर खड़े रह करके फोटो निकाली थी, पीछे व्हाइट हाउस दिखता है। और प्रधानमंत्री बन गए तो वो फोटो भी पॉपुलर हो गई। लेकिन तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी कभी जिंदगी में व्हाइट हाउस पे जाने का अवसर आएगा। लेकिन जब मैं व्हाइट हाउस गया, एक बात ने मेरे दिल को छू लिया और मैं ये कभी भूल नहीं सकता हूं। बराक ने मुझे किताब दी। वे किताब काफी मेहनत करके खोज करके लाए थे और
1894 में वो किताब प्रसिद्ध हुई थी। स्वामी विवेकानंद, जो मेरे जीवन की प्रेरणा है, वे शिकागो गए थे, वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में गए थे, और वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में जो भाषण हुए थे उसका वो कंपाइलेशन था। वो किताब खोज करके मेरे लिए लाए थे, यानी वो घटना मेरे लिए दिल को छूने वाली थी। लेकिन उतना ही नहीं, उन्होंने वो किताब के पन्ने खोल खोल करके क्या क्या उसमें लिखा है वो मुझे दिखाया। मतलब कि वो पूरी किताब देख चुके थे, और इस गर्व के साथ मुझे कहा कि मैं उस शिकागो से आता हूं जहां स्वामी विवेकानंद आए थे। ये बातें मेरे मन को बहुत छू गई थी, और मैं जीवन भर ये मैं अपनी विरासत मानता हूं। तो कभी व्हाइट हाउस के से दूर कहीं खड़े रह करके फोटो निकालना, और फिर कभी व्हाइट हाउस में जाकर के जिनके प्रति मेरी श्रद्धा रही है उनके जीवन की किताब प्राप्त करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल को कितना स्पर्श कर गया होगा। बराक, आपके लिए एक क्वेश्चन है। हिमानी फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। Question is for you. Well, the question is, did you both imagine you would reach the positions that you've reached today? And it's interesting, Mr. Prime Minister, you talking about the first time you visited the White House and being outside that iron fence. The same is true for me. When I first went to the White House, I stood outside that same fence and looked in, and I certainly did not imagine that I would ever be visiting there, much less living there. I think both of us have been blessed with extraordinary opportunity, coming from relatively humble beginnings. And when I think about what's best in America and what's best in India, the notion that a tea seller or somebody who was born to a single mother like me could end up leading our countries is an extraordinary example of the opportunities that exist within our countries. Now, I think part of what motivates both you and I is the belief that there are millions of children out there who have the same potential, but may not have the same education, may not be getting exposed to opportunities in the same way. And so part of our job, part of government's job, is that young people who have talent and who have drive and are willing to work for it are able to succeed. And that's why emphasizing school, higher education, making sure that children are healthy, and making sure those opportunities are available to children of all backgrounds, girls and boys, people of all religious faiths and all races in the United States, is so important, because you never know who might be the next Prime Minister of India or who might be the next President of the United States. They might not always look the part right off the bat, and they might just surprise you if you give them a chance. थैंक यू बराक। ये सवाल हिमानी लुधियाना पंजाब से मुझे भी पूछा है कि क्या आपने कभी इस पद पर पहुंचेंगे इसकी कल्पना की थी। जी नहीं, कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि मैं तो जैसे बराक ने बताया बहुत ही सामान्य परिवार से आता हूं। लेकिन मैं बहुत लंबे अरसे से सबको ये कहता आया हूं कि कुछ भी बनने के सपने कभी मत देखो। अगर सपने देखने हैं तो कुछ करने के देखो। जब कुछ करते हैं तो संतोष भी मिलता है और नया करने की प्रेरणा भी मिलती है। सिर्फ बनने के सपने देखते हैं और नहीं बन पाते हैं तो सिवाय निराशा कुछ हाथ नहीं लगता है। और इसलिए मैंने जीवन में कभी कुछ भी बनने का सपना देखा नहीं था। आज भी कुछ बनने के सपने दिमाग में है ही नहीं, लेकिन कुछ करने के जरूर हैं। और भारत माता की सेवा करना, 125 करोड़ देशवासियों की सेवा करना, इससे बड़ा सपना क्या हो सकता है, वो ही करना है। मैं हिमानी का बहुत आभारी हूं। एक क्वेश्चन है बराक के लिए फ्रॉम ओम प्रकाश।
Om Prakash is studying Sanskrit at JNU. He belongs to Jhunjhunu, Rajasthan. Om Prakash is a convener of Special Center for Sanskrit Studies in JNU. Well, this is a very interesting question. His question is, the youth of the new generation is a global citizen. He's not limited by time or boundaries. In such a situation, what should be the approach by our leadership, governments, as well as societies at large? And I think this is a very important question. When I look at this generation that's coming up, they're exposed to the world in ways that you and I could hardly imagine. They have the world at their fingertips, literally. They can, using their mobile phone, get information and images from all around the world. And that's extraordinarily powerful. And what that means, I think, is that governments and leaders cannot simply try to govern or rule by a top-down strategy, but rather have to reach out to people in an inclusive way and an open way and a transparent way, and engage in a dialogue with citizens about the direction of their country. And one of the great things about India and the United States is we're both open societies, and we have confidence and faith that when citizens have information and there's a vigorous debate, that over time, even though sometimes democracy is frustrating, the best decisions and the most stable societies emerge, and the most prosperous societies emerge, and new ideas are constantly being exchanged. And technology today, I think, facilitates that not just within countries, but across countries. And so I have much greater faith in India and the United States, countries that are open information societies, in being able to succeed and thrive in this new information age, than closed societies that try to control the information that citizens receive. Because ultimately, that's no longer possible. Information will flow inevitably, one way or the other, and we want to make sure that we're fostering a healthy debate and a good conversation between all peoples. जो सवाल बराक को पूछा गया है, ओम प्रकाश चाहते हैं कि मैं भी उस विषय में कुछ कहूं। बहुत ही अच्छा जवाब बराक ने दिया है, बड़ा इंस्पायरिंग है। मैं इतना ही कहूंगा कि एक जमाने में खास करके कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित लोग थे, वे दुनिया में एक आह्वान करते थे और वो कहते थे, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। ऐसा एक नारा कई दशक तक चलता रहा था। मैं समझता हूं आज की जो युवा की शक्ति है, आज की युवा की जो पहुंच है, इसको देखते हुए मैं यही कहूंगा कि यूथ यूनाइट द वर्ल्ड, युवकों दुनिया को एक करो। मैं समझता हूं उनमें ये ताकत है और वे कर सकते हैं। अगला सवाल है सीए पिकाशु मुथा, ये मुंबई से पूछ रहे हैं और उन्होंने मुझे पूछा है, आप किस अमेरिकन नेता से इंस्पायर्ड है? वैसे जब छोटे थे तो कैनेडी की फोटो दिखा करते थे हिंदुस्तान के अखबारों में, बड़ी इंप्रेसिव थी उनकी पर्सनालिटी। लेकिन आपका सवाल है किसने इंस्पायर किया? मुझे बचपन में पढ़ने का शौक था और मुझे बेंजामिन फ्रैंकलिन का जीवन चरित्र पढ़ने का अवसर मिला था। 1700 साल की समय काल उनका, और वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन वो जीवन चरित्र इतना प्रेरक है। एक व्यक्ति अपने जीवन को बदलने के लिए समझदारी पूर्वक कैसे प्रयास करता है, नींद ज्यादा आती है तो नींद कम करने के तरीके क्या हो सकते हैं, ज्यादा खाने का मन करता है तो कम खाने की तरफ जाना है तो कैसे जाना, काम करते करते अपने साथी लोग नाराज होते हैं, उनको लगता है कि देखो ये तो कुछ करते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है, तो इस समस्या का समाधान कैसे करना। ऐसे ऐसे छोटे छोटे विषयों को उन्होंने अपने
बायोग्राफी में लिखा है, और मैं तो हर एक को कहता हूं कि हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए। आज भी मुझे वो प्रेरक देता है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुआयामी व्यक्तित्व था उनका। वे राजनीतिज्ञ थे, वो राजनीतिक विचारक थे, वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो कूटनीतिक थे, और बहुत सामान्य परिवार से आए थे। पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने आज भी अमेरिका के जीवन पर अपने विचारों की छवि छोड़ी हुई है। मुझे उनका जीवन सचमुच में प्रेरक लगा है, और मैं आपसे भी कहूंगा, आप भी अगर उनका जीवन चरित्र पढ़ोगे, आपको अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसमें से रास्ता दिखाते हैं, और बहुत छोटी छोटी बातों का सहारा लिया है। तो मैं मानता हूं कि जितना मुझे प्रेरणा मिली है, आपको भी मिलेगी। एक क्वेश्चन है बराक के लिए, मोनिका भाटिया। मोनिका भाटिया ने बराक से सवाल पूछा है। Well, the question is, as leaders of two major economies, what inspires you and makes you smile after a bad day at work? And that's a very good question. I say sometimes that the only problems that come to my desk are the ones that nobody else solves. If they were easy questions, then somebody else would have solved them before they reached me. So there are days when it's tough and frustrating, and that's true in foreign affairs, that's true in domestic affairs. But I tell you what inspires me, and I don't know, Mr. Prime Minister, if you share this view. Almost every day, I meet somebody who tells me, you made a difference in my life. So they'll say, the healthcare law that you passed saved my child who didn't have health insurance, and they were able to get an examination from a physician, and they caught an early tumor, and now he's doing fine. Or they'll say, you helped me save my home during the economic crisis. Or they'll say, I couldn't afford college, and the program you set up has allowed me to go to the university. And sometimes they're thanking you for things that you did 4 or 5 years ago. Sometimes they're thanking you for things you don't even remember, or you're not thinking about that day. But it's a reminder of what you said earlier, which is if you focus on getting things done as opposed to just occupying an office or maintaining power, then the satisfaction that you get is unmatched. And the good thing about service is that anybody can do it. If you're helping somebody else, the satisfaction that you can get from that, I think, exceeds anything else that you can do. And that's usually what makes me inspired to do more and helps get through the challenges and difficulties that we all have. Because obviously we're not the only people with bad days at work. I think everybody knows what it's like to have a bad day at work. You just have to keep on working through it. Eventually, you'll make a difference. सचमुच में बराक ने मन की बात कही है कि हम भी भले किसी पद पर क्यों ना हो, हम भी इंसान हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें प्रेरणा देती है। मेरा भी मन करता है मैं एक घटना मेरे अपने जीवन की बताऊं। मैं जीवन में बहुत वर्षों तक एक प्रकार से परिव्राजक रहा। लोगों के घर में मुझे खाना मिलता था, कोई जो बुलाता था वो मुझे खिलाता था। एक बार एक परिवार मुझे बार बार कहता था कि आप मेरे घर खाना खाने आइए, लेकिन मैं जाता नहीं था। इसलिए नहीं जाता था कि वो बहुत गरीब परिवार था और मुझे लगता था कि मैं उनके यहाँ भोजन के लिए जाऊंगा, उन पर बोझ बन जाऊंगा। लेकिन उनका प्यार उतना था, उनका आग्रह इनका था कि आखिरकार मुझे झुकना पड़ा और मैं उनके घर भोजन के लिए गया। जब भोजन के लिए हम बैठे, बहुत छोटी सी झोपड़ी जैसी जगह थी, तो उन्होंने मुझे बाजरे की रोटी और दूध दिया। लेकिन उनका छोटा बच्चा उस दूध की ओर देख रहा था। ऐसा लगा कि जैसे इस बच्चे ने कभी दूध देखा नहीं है। तो मैंने तुरंत वो दूध का कटोरा उस बच्चे को दे दिया और उसने तुरंत पल दो पल में उसको पी लिया। उसके घर के लोग बहुत नाराज हो गए कि इसने दूध क्यों पी लिया। और मैंने अनुभव किया कि उस बच्चे ने शायद
मां के दूध के सिवाय कभी भी दूध पिया नहीं होगा और मुझे अच्छा खिलाने के इरादे से वो दूध ले आए थे। इस बात ने मुझे इतनी प्रेरणा दी कि गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति मेरे लिए इतनी चिंता करता है तो मुझे अपना जीवन ऐसे लोगों के लिए लगा देना चाहिए। तो यही बातें हैं जो प्रेरणा देती हैं। और बराक ने भी बहुत ही एक सामान्य मन को क्या क्या लगता है हमारे सामने बताया है। मैं बराक का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इतना समय दिया और मन की बात सुनने के लिए मैं देशवासियों का भी आभारी हूं। मैं जानता हूं कि भारत में रेडियो हर घर पहुंचा हुआ है, हर गली पहुंचा हुआ है और ये रेडियो मन की बात, स्पेशल मन की बात, ये आवाज हमेशा हमेशा गूंजती रहेगी। मुझे एक विचार आया है, मैं आपके सामने रखता हूं। मेरी और बराक के बीच आज जो बात हुई है इसकी एक ई बुक निकाली जाए। मैं चाहता हूं कि जो मन की बात को ऑर्गेनाइज करते हैं ई बुक निकालें और मैं आपसे भी कहता हूं कि आप जो श्रोताओं ने ये मन की बात सुनी है तो आप भी जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और उसमें से जो बेस्ट 100 विचार मिलेंगे उसको भी मेरी और बराक की इस किताब के साथ हम जोड़ेंगे और एक ई बुक निकालेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्विटर हो, फेसबुक हो, ऑनलाइन कुछ लिखना चाहते हो तो आप #YesWeCan इस हैशटैग के साथ हमें लिखिए। एलिमिनेट पॉवर्टी, यस वी कैन। क्वालिटी हेल्थ केयर टू ऑल, यस वी कैन। यूथ एम्पावर्ड विद एजुकेशन, यस वी कैन। जॉब्स फॉर ऑल, यस वी कैन। ग्लोबल पीस एंड प्रोग्रेस, यस वी कैन। मैं चाहता हूं कि इस टैगलाइन के साथ आप भी इस मन की बात सुनने के बाद अपने विचार, अपने अनुभव, अपनी भावना पहुंचाइए। उसमें से जो बेस्ट 100 होगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे और मैंने और बराक ने जो बातें की हैं उसकी किताब में उसको भी जोड़ देंगे और मैं मानता हूं सच में ये हम सबके मन की बात बन जाएगी। फिर एक बार बराक का बहुत बहुत आभार, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और 26 जनवरी के इस पावन पर्व पर बराक की यहां आना मेरे लिए गर्व की बात है, देश के लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा की मन की बात सीधे तमाम हिंदुस्तान के उन लोगों के साथ जो इस वक्त आकाशवाणी पे उनके साथ जुड़े थे। सिर्फ आकाशवाणी नहीं, तमाम चैनल्स ने, तमाम टीवी स्टेशंस ने भी इसका सीधा प्रसारण किया है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, तुरंत बाद हम एनालिसिस करेंगे इस स्पीच का, इस मन की बात का। बीजेपी के नेता शेषाद्री मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय पुरी पहले से हमारे साथ हैं और साथ में पूर्व राजनयिक सुरेंद्र कुमार साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ 2 रिपोर्टर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ उत्कर्ष है, मेरे सहयोगी इलाहाबाद से, जो सीधे बात कर रहे थे। वहां पर रेडियो पर यह प्रसारण चल रहा था। और साथ में हमारे एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज शर्मा भोपाल से, जो इस प्रसारण को वहां पर बैठे यूथ के साथ सुन रहे थे। एक क्विक रिएक्शन पहले बाहर से लेते हैं, फिर स्टूडियो में लोगों के साथ एनालाइज करेंगे। उत्कर्ष, इलाहाबाद में आप मौजूद हैं, क्या रिएक्शन है लोगों का इस करीब 35 मिनट की मन की बात सुनने के बाद? जी सुमित जी, जैसा कि आपने कहा कि क्या रिएक्शन है, अगर आपने देखा होगा विजुअल्स में लोगों ने जोरदार तालियां बजाई थी। मैं गुरुकुल पर हूं, यहाँ लाइट गोल हो चुकी है, बाहर बहुत बारिश हो रही है, लेकिन बैटरी लगाकर लोगों ने इन 2 राष्ट्राध्यक्षों का पूरा संबोधन सुना। दुनिया के सबसे पुराने गणतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष को सुनने के लिए मेरे साथ काफी युवा हैं, इस गुरुकुल में पढ़ते हैं, छोटे से लेकर यहाँ पढ़ाने वाले आचार्य तक सब यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले इन्हीं से बात करूंगा। ये बताइए कि 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे, कैसा लगा आपको ओबामा और मोदी को सुनना?
उनको सुनना तो बहुत अच्छा लगा। उनकी जिस टॉपिक्स पे वो बात कर रहे थे उनको सुन भी रहे थे। वो जैसे कई लोग उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो पहली बात तो ये है कि उन क्वेश्चंस, इतने टफ क्वेश्चंस का वो इतनी अच्छी तरह से जवाब दे देते हैं। और दूसरी बात, बराक ओबामा जी से, जो वर्ल्ड के सबसे ताकतवर राष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछना लोगों को तो कितना इंटरेस्ट होता है उसमें पूछने में। बिल्कुल, हर कोई जानना चाहता है कि दो राष्ट्राध्यक्ष आम आदमी के बारे में। उत्कर्ष आप रहिए, हम आते हैं आपके पास। मनोज शर्मा, मैं आपके पास भी आऊंगा। शेषाद्रिचारी, मुझे पता है आपको जाना है, मैं जाने के पहले आपका रिएक्शन जरूर लूंगा, क्योंकि आपकी लगातार इंगेजमेंट इसके बाद भी। इस करीब 35 मिनट की बातचीत में उन्होंने शुरू में स्पेसिफाई कर दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने, कि किसी पॉलिटिकल या कूटनीतिक विषय पे ना जाएंगे, बहुत साधारण से मुद्दे जिससे आम जनता कनेक्ट करती है उसको हम छूने की कोशिश करेंगे। आपके हिसाब से सबसे पॉजिटिव चीज क्या लगी आपको? क्या, कौन सी बात? नहीं, देखिए, एक प्रधानमंत्री के ओर से अनेक प्रयत्न किए जाते हैं। जो सामाजिक विषय है, उन सामाजिक विषयों पर एक प्रकार से सरकार क्या कर रही है और उस विषय पर समाज में एक जन जागरण और एक प्रबोधन निर्माण करना। पिछले कई वर्षों में अनेक सामाजिक विषयों पर, मतलब छुआछूत का एक बहुत बड़ा विषय था इस देश में। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस विषय के बारे में बहुत कुछ काम किया। स्वतंत्रता के बाद भी उस विषय पर बहुत कुछ हुए। अनेक नीतियों में, नियमों में, रूल्स रेगुलेशंस में परिवर्तन भी हुए। फिर भी इस सामाजिक विषय को जिस मात्रा में लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जन जागरण करना चाहिए, अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं, वो निर्माण करना चाहिए, वो हो नहीं पाया। इसका अगर आप सीधा असर देखेंगे तो रिजर्वेशन को लेकर कितना बड़ा बवाल इस देश में खड़ा हुआ, वो एक राजनीतिक प्रश्न बन गया। आज कितनी सरलता से इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने, मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लोगों के लिए तो एक नई बात हो गए होगा, परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए देश के सामने जो सामाजिक विषय है उस पर चर्चा करना, बात करना, बिल्कुल ये एक बात। जैसे बेटी बचाओ योजना के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, इन सभी विषयों के बारे में चर्चा करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात जो मुझे तुरंत ध्यान में आया, वो इन दोनों के बातों से देश के सामने नहीं बल्कि दुनिया के सामने एक विषय को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। वो यानी हमारे दोनों देशों की जो राजतंत्र है और लोकतांत्रिक मूल्यों में जो एक विश्वास है, उन दोनों का एक प्रदर्शन ये दोनों प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये चीज डॉक्टर साहब कई बार बीते 48 घंटे में, जब से 3 दिन से यहाँ पे थे, कई बार रहकर इस बात का जिक्र आया दोनों राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से। दो चीजें बहुत कॉमन है, एक तो हम लोग डाइवर्स ओपिनियन के लोग हैं, डाइवर्सिटी के से भरे हुए हमारे मुल्क है, और साथ साथ दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष जो है बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ही साधारण परिवार से निकलकर अपने अपने देश की अगुवाई कर रहे हैं, जो कि शायद बहुत बड़ा कनेक्ट भी स्थापित करता है। मेरे साथ जेडीयू के नेता और फॉर्मर डिप्लोमैट पवन वर्मा साहब भी इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। वर्मा जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा मैं इस पूरे मन की बात पर जो साथ साथ चलने की बात दोनों नेता कर रहे थे। देखिए, राष्ट्रपति ओबामा प्रधानमंत्री मोदी के साथ मन की बात में और रेडियो एड्रेस में जुड़े, ये तो अच्छी बात है, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि कोई नई बात कही नहीं। सवाल उनको मालूम थे, उन्होंने जवाब दिए। आजकल देश में अधिकांश मन की बात पर तो लोगों की टिप्पणी ये है कि मन की बात तो हो चुकी है, अब काम की बात भी हो देश में। पर ये एक अपने आप में एक अनोखा एक स्टेप था कि दोनों कौन सी नई बात एक्सपेक्ट कर रहे थे? एक दो चीज मैं कहना चाहता हूं। जी सर, आप कौन सी नई बात एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जहां तक संदेश की बात है, जहां तक ठोस कोई बात है, उन्होंने चर्चा की, अपने आप में बात की, उस पर एक रेडियो एड्रेस हुआ, वो अपने आप में अच्छी बात है। पर एक दो चीजों पर मैं टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा।
एक तो मुझे इस एक स्पेशल बात लगी कि एक बार फिर से बराक ओबामा साहब ने दोहराया कि गॉड इज इन एवरीवन, ईश्वर सब में बसते हैं। वो उसका संदर्भ ये है कि आज सुबह उन्होंने बड़े पॉइंटेड वे में अपने टाउन हॉल के संबोधन में रिलीजियस हार्मनी और टॉलरेंस और भारत की जो वैल्यू सिस्टम है और उनका रहना और मजबूत होना पर एक टिप्पणी की थी। उसमें बहुत सी चर्चा चल रही है। उसके बाद उन्होंने आज अपनी मन की बात में भी वो बात दोहराई कि जो भारत में होता है इस संदर्भ में उसको देश विदेश देख रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय नजर है भारत पे, क्योंकि सिर्फ डेवलपमेंट से नहीं, एक भारत यंग रिपब्लिक और एंशिएंट सिविलाइजेशन है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, सच कहता हूं, मैं इसमें कोई राजनीतिक कटुता नहीं लाना चाहता, पर जितनी बार मोदी साहब ने बराक से उनको एड्रेस किया, मुझे कुछ अटपटा लगा। देखिए, घनिष्ठता दोस्ती में अंतरंग दोस्ती हो आपकी, पर एक बेतकल्लुफी आ जाना उसमें, वो तो उनको बार बार प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते रहे और वो हमेशा उनको बराक बराक। देखिए, सभ्यताओं में भी फर्क होता है। अमेरिका में बच्चे अपने पेरेंट्स को भी, माता पिता को भी पहले नाम से बुलाते हैं। अब आपकी जो मित्रता दिखाने का तरीका था, मतलब अनगिनत बार उन्होंने उनको बराक बराक बराक। अरे प्रेसिडेंट आए हैं आपके देश में, आपके मित्र हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों में अच्छी दोस्ती है। ये जो इक्वालिटी, मैं समझता हूं इक्वालिटी की जो तस्वीर सामने आ रही थी कि हम हिंदुस्तान का राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष को सीधे नाम से बुलाए। शेषाद्रीचारी पर रिएक्शन चाहूंगा, क्यों जेडीयू के नेता पवन वर्मा इसकी आलोचना कर रहे हैं? देखिए, पवन जी एक डिप्लोमेट रहे हैं जी, और डिप्लोमेसी से संबंधित लोग जो हैं खास करके, वो इन विषयों के बारे में काफी एक दृष्टि से एक टची हैं ही, होते भी हैं। और ये सही भी है कि प्रत्येक देश का एक अपना एक व्यवहार है। जैसे ब्रिटेन के जो लोग हैं, ब्रिटिश व्यक्ति जो है, वो इन फॉर्मेलिटीज को बहुत गहराई से चाहते हैं। मतलब महारानी का बेटा जो होगा, वो भी अगर अपने बटलर को कोई पत्र देता है और कहे, वो ये नहीं कहेगा कि प्लीज डिलीवर दिस लेटर टू माय मदर, वो कहेगा प्लीज हैंड इट ओवर टू हर मैजेस्टी। यानी बेटा भी अपने माँ को मदर नहीं कहेगा, हर मैजेस्टी ही कहेगा। परंतु अमेरिका में ऐसी बात नहीं है। अमेरिकन्स जो हैं, वो कितने भी बड़े छोटे क्यों ना हो, वो फर्स्ट नेम से बिल क्लिंटन को अगर किसी ने कहा बिल, तो उनको कोई बहुत बुरा नहीं लगेगा, अटपटा सा नहीं लगेगा। ये उनको नहीं लगेगा, लेकिन हमको लगता है। इसीलिए इनका जो कहना है उसमें कुछ बोल रहे हैं पवन वर्मा, कुछ बोल रहे हैं। तथ्य है। पवन जी, आप कुछ बोल रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं चारी साहब की बहुत इज्जत करता हूँ। एक हमारी सभ्यता है, एशियाटिक कल्चर होता है और हमें उसको छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। जैसे अंत में प्रधानमंत्री ने इसको फिर प्रचार प्रसार से एक बड़े पैमाने पर जोड़ दिया और उसमें यस वी कैन का मोटो लगा दिया। वो तो ओबामा साहब का रहा था कैंपेन में। कुछ हम अपना भी तो रखे, तो इसलिए निभाएं। वर्मा जी, आपने जो बात की है ना, उस पर एक डॉक्टर शेषाद्रीचारी का रिएक्शन जरूर लूंगा मैं आऊंगा आपके पास। सर, ये जो बात थी गॉड इज इन एवरीवन, जो वो इशारा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ ताकतें हैं जो कि आपके परिवार से जुड़ी हुई हैं, और कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर को उनको लेकर बार बार अपने आप को एक्सक्यूज देना पड़ता है, अपने आप देश के सामने माफी मांगनी पड़ी, चाहे हम सबको पता है। क्या आपको लगता है कि ये चीजें अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहे थे बराक ओबामा? नहीं, देखिए, इसमें भी फिर हम जो गलती कर रहे हैं, वो कोई भी दुनिया में भाषण करे, हमें लगता है कि ये हमारे संदर्भ में कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं वो हमारे देश के संदर्भ में कर रहे हैं। वो एक जागतिक संदर्भ में कह रहे हैं और वो बार बार इस बात की इशारा कर रहे हैं कि भारत में जिस प्रकार का एक व्यवहार है, सभी धर्मों के बारे में और सभी पंथों के बारे में, सभी उपासना पद्धतियों के बारे में एक समान व्यवहार करने की एक सोच है। वो जो नेशनल वैल्यूज जिसको उन्होंने कहा, इस वैल्यूज के बारे में उन्होंने कहा है। इस पर टिप्पणी इसका उल्लेख किया, कितना, केवल इतना ही नहीं, परंतु उन्होंने कहा कि इस बात को भारत ने अपने संविधान में स्थान दिया है। बिल्कुल।
मेरे साथ कांग्रेस की नेता रीटा बहुगुणा जोशी भी जुड़ गई इस चर्चा में। रीटा जी, स्वागत है आपका। मुझे पता लगा कि आप पिछले 5 मिनट से शायद इंतजार भी कर रही हैं। मैं माफी चाहता हूं, देर से आपके पास आ पा रहा हूं। आपका पहला रिएक्शन, 2 चीजें पवन वर्मा जी ने कही जो मैं क्विकली आपको बता दूं कि गॉड इज इन एवरीवन की बात जो उन्होंने की है वो कहीं ना कहीं कमेंट करने की कोशिश की है बीजेपी की तरफ, जो कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए आज दिन में कहा भी। और दूसरी बात, जो बात पवन वर्मा साहब को बुरी लगी कि राष्ट्रपति ओबामा को प्रधानमंत्री मोदी बराक बराक कह के संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस का रिएक्शन। बात और अंत में भी देखिए, पहले तो मैं कहूंगी कि मैंने पूरी बात सुनी है मन की बात, और प्रधानमंत्री जी के बात में कोई नई बात मुझे नजर नहीं आई। लगातार जो इतने दिनों से बोल रहे हैं उसी का रेपिटेशन था। लेकिन प्रश्न है ये कि सवाल चुने किसने? जो सवाल जनता की तरफ से आए वो स्क्रीन किए गए, और जो सवाल सरकार को पसंद आए वही सवाल पूछे गए। आपने सवाल भेजा था रीटा जी? रीटा जी, आपने सवाल भेजा था कोई आपने आपकी पार्टी ने प्रधानमंत्री से पूछने के लिए? वो अपने मन की बात, अपने मन की बात तो उन्होंने सीरी फोर्ट में बोली, और बार बार अपने हर भाषण में अगर उन्होंने महात्मा गांधी का नाम लिया, अगर उन्होंने आज 3 हिंदुस्तान की शख्सियतों का नाम लिया, अगर आज उन्होंने अंबेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लिया, उन्होंने अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेदों की भी चर्चा की, तो आप समझ सकते हैं उनका इशारा किया था। बार बार उनका कहना कि अगर भारत को बड़ा बनना है तो इंक्लूसिव होना होगा। रीटा जी, ठीक है, और आपने आलोचना का पॉइंट अच्छा ढूंढा है, और मैं उस पर शेषाद्री चार्य जी का जवाब भी लूंगा। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए। आप ये तो नंबर देना चाहेंगी कि जो काम मनमोहन सिंह 10 साल में नहीं कर पाए, वो काम नरेंद्र मोदी ने 4, 5, 6, 8 महीनों में कर दिया। ये आइडिया आपकी सरकार के मन में नहीं आया कि आप भी ऐसी मन की बात कर सकते थे? देखिए, वो राहुल गांधी जी ने ठीक कहा, इनको अपना पीआर चलाना खूब आता है। आनंद शर्मा ने भी कुछ कहा है, आनंद शर्मा ने विजिट को सक्सेसफुल बताया है, शशि थरूर ने तारीफ की है, आपकी पार्टी के नेता हैं। हमारे मनमोहन सिंह जी ने वो परमाणु करार किया जिसके बूते आज ये एनडीए सरकार अपनी उपलब्धि गिनाने की कोशिश कर रही है। हम लोगों ने जनता के बीच में, चाहे फूड सिक्योरिटी हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे हेल्थ मिशन हो, सारे काम किए, लेकिन उसका ढिंढोरा नहीं पीटा। मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि बाराक ओबामा जी का जो पूरा आज 2 दिन की उनकी भाषा है, वो भाषा स्पष्ट ये है दैट इंडिया की जो ट्रेडिशन है, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, शेषाद्री जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात को, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। शेषाद्री जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स पे बहुत जोर दिया। ओबामा जी ने इंक्लूसिव पॉलिटिक्स पे जवाब बहुत बोला है, और एक संकेत है हमारी एनडीए सरकार के लिए कि इस पर ध्यान दें। नहीं, रीता जी अपनी मन की बात नहीं कह सकती हैं, लेकिन आपने बड़ा कठिन सवाल पूछा। जितने कठिन सवाल ओबामा और मोदी को नहीं आया, उतना कठिन आपने उनको पूछा। देखिए, मनमोहन सिंह जी अगर अपनी मन की बात करते तो उनकी नौकरी चली जाती थी। वो अपनी मन की बात नहीं कह सकते थे। सिर्फ एक बार उन्होंने अपनी मन की बात कही और किया भी, वो था इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील को उन्होंने अपने सरकार को ताक पर रखकर किया। अगर वो ये नहीं कहते या तो ये डील होगा या मैं प्रधानमंत्री रहूंगा। तो आप ये बात मान रहे हैं कि जो बात रीटा जी कह रही है कि कांग्रेस ने नींव रखी थी? नहीं, देखिए, आज आप फल काट रहे हैं। सबसे पहले इस विषय के बारे में जो 2 पहले शुरू के ड्राफ्ट्स बने थे, वो 2003 और 4 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बने थे। ये कांग्रेस ने भी हमको कहा था, जब इस विषय पर हमारा थोड़ा विरोध था, तो कांग्रेस वालों ने हमको कहा कि ये विषय तो आपके प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने शुरू किया है, इसलिए आप क्यों विरोध कर रहे हैं? हमने कहा कि उस समय का मामला अलग था, आज का मामला अलग है, और जिस पैरामीटर्स को लेकर आप चल रहे हैं उस पर हमारा विरोध है। कुल मिलाकर डील का हमारा विरोध नहीं है, परंतु जो पैरामीटर्स आप तय कर रहे हैं उस पर हमारा विरोध है। एनीवे, जो मैं आज भी कह रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं पार्टी का भी ये विचार है कि एनएसजी वेवर मिलने तक जो मनमोहन सिंह जी ने काम किया, वो कोई बहुत कम नहीं था, बहुत बड़ा काम था। वो इस पूरे, आप अगर इसको एक इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को
मैं बार बार इसका उल्लेख कर चुका हूं, एक मल्टी हर्डल रेस बिल्कुल ये है। इसीलिए ये मत समझिए कि अभी जो कुछ भी हुआ है उसके कारण ये पूरा समाप्त हो गया। आगे चलकर भी बहुत से इसमें दिक्कतें आएंगी, इन दिक्कतों को भी हमें पार करना होगा। रीटा जी देखिए, खुलकर शेषाद्री जी ने आपके प्रधानमंत्री की तारीफ की है, अब तो आप भी तारीफ कर सकती है। कल नहीं, देखिए मैं तो कह रही हूँ डिप्लोमेसी एक दिन का खेल नहीं है, बरसों बरसों में डिप्लोमेसी जो है वो ग्रो करती है, बढ़ती है। लेकिन इन्होंने तो स्वीकार किया, इनकी पार्टी के और लोग, विचारधारा के और लोग स्वीकार नहीं करते इस बात को। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ओबामा जी आए हैं, रीटा जी आप स्वीकार कर लीजिए, आपकी पार्टी वाले स्वीकार करें ना करें, बहुत सारे रास्ते में सरलीकरण करने की बात कही है, परंतु अभी कुछ तथ्य समक्ष नहीं है, तथ्यों को समक्ष आने दीजिए। और ये बात सच है, बार बार बराक बराक कहना हम लोगों को भी बुरा लगा। हमारे यहाँ तो जी कहा जाता है, हम जब भाषण देते हैं सार्वजनिक तो हमसे जो छोटा 20 साल का भी है उसको भी हम जी करके नाम से पुकारते हैं। ऐसे देखिए, आप अपनी दोस्ती में कमरे के बंद कमरे में कोई भी नाम बुलाइए। ठीक है, मैं आप तीनों शख्सियत पॉलिटिकल हैं, आपकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, मैं समझ सकता हूं। इस बराक को लेकर दो न्यूट्रल वॉइसेस मेरे पास बैठी हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं है। संजय पुरी वहीं रहते हैं विदेश में, हिंदुस्तानी है, उनसे पूछता हूं। संजय जी, आपके हिसाब से बराक ओबामा को बराक के नाम से संबोधित करना क्या ये गलत था? क्या ये अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं आएगा? इसके दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक तो मैं आपकी थॉट पूछ रहा हूँ। मैं अपनी थॉट आपको मैं बता रहा हूं, मगर उसमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन है। यूनाइटेड स्टेट्स में जब एक आदमी प्रेसिडेंट हो जाता है वो लाइफ के लिए प्रेसिडेंट कहला जाता है। अभी भी उनको प्रेसिडेंट क्लिंटन बोलते हैं, अभी भी उनको प्रेसिडेंट बुश बोलते हैं। अगर वो सेनेटर होता है हमेशा सेनेटर कहा जाता है, गवर्नर होता है हमेशा गवर्नर कहा जाता है। तो वो डेजिग्नेशन जो है डिप्लोमेसी और जो भी आपको, वो हमेशा रहता है। इनफॉर्मेलिटी होती है मगर वो देख के इनफॉर्मेलिटी होती है। पर देखिए सुरेंद्र जी, जब आप बराक ओबामा को बराक कहते हैं, उनके नाम से बुलाते हैं, तो वो हिंदुस्तान जो पिछले 60 सालों से अमेरिका की तरफ हमेशा ऊपर की तरफ देखता था कि हमेशा उससे अमेरिका ऊपर रहा, आप अमेरिका को बराबरी पे ले आते हैं, आप इक्वालिटी पे ले आते हैं, आप साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बात करते हैं। नहीं लगता आपको नाम लेने से बराबर में आ जाए तो हम बहुत पहले बराबर, कम से कम कॉन्फिडेंस तो पैदा होता है अपने लोगों में। इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा ख्याल हम लोग बहुत पढ़ना चाहिए। बहस बहुत चल रही है उसी फेसबुक उसी ट्विटर पर, जिसमें बराक प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इसका बुरा नहीं माना है तो उसको वहीं छोड़ दें। आप उनको नहीं, उनकी बात ही नहीं हो रही, तो हमारे डिबेट चल रही है। हम हिंदुस्तानी आपस में बहस कर रहे हैं। आपका फर्स्ट नेम लेता हूं, आप बुरा नहीं मानते तो बाकी लोगों को बुरा मानना चाहिए। प्रेसिडेंट ओबामा ने, देखिए उस दिन जब हैदराबाद हाउस में कई बार कहा था बराक, आज भी कहा, कोई इशारा नहीं दिया, को बुरा नहीं माना, तो इस बात की इतनी बाल की खाल निकालना मैं समझता नहीं। उसका एक आपका मैत्री का माहौल बन रहा है, उसमें उनको कोई इसके बारे में आप बाल की खाल निकाल रहे हैं। आप भी क्या फॉर्मर डिप्लोमेट साथी? मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। जी बोलिए। मैं इसका जवाब ये देना चाहता हूँ, मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं इसमें कोई राजनीतिक कटुता नहीं लाता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जहाँ अमेरिका में अगर बहुत घनिष्ठ दोस्ती हो तो एक दूसरे को फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, वो खास तौर से एक प्राइवेट मिलियू में। जो स्टेट लेवल होता है, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो अब एक स्टेट लेवल पर आप नेशन को एड्रेस कर रहे हैं और आप बार बार ज्यादा ही कुछ कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इतनी मित्रता हो गई है। तीन बार मिले, 2 साल पहले तक तो वीजा तक नहीं था अमेरिका जाने का, और आप बार बार उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं तो समझता हूँ सैकड़ों बार बराक बराक। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इससे आप क्या जाहिर कर रहे हैं? रीटा बहुगुणा कुछ बोल रही है, फिर मैं शेषाद्री आपको जवाब दूंगा। रीटा जी आप कुछ बोल रही थी। जी हर बार कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो बार बार बोल रहे हैं, और ये बार बार बराक बराक बोल रहे हैं। भाई वो तो इंडिकेट कर रहे हैं कि देयर शुड बी सम डिसेंसी। वो भी तो कह सकते थे नरेंद्र, वो तो नहीं कह रहे थे नरेंद्र, वो तो नहीं कह रहे थे मोदी, वो तो कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। पर रीटा जी हम बहुत ही, आपको लगता है कि हमें बहुत ही ऊपरे लेवल की बात कर रहे हैं? क्योंकि इस करीब 35 मिनट के प्रसारण में जो आपने सुना, मैंने सुना,
तमाम देशवासियों ने सुना। उन्होंने हेल्थ केयर की बात की, उन्होंने एजुकेशन की बात की, उन्होंने यूथ अवेयरनेस की बात की, उन्होंने सोशल साइट्स के जरिए किस तरीके से ग्लोबल यूथ के जरिए सारी दुनिया को जोड़ा जा सकता है। उन तमाम बातों को छुआ। आपको नहीं लगता कि इन पर भी हमको अंडरलाइन करने की जरूरत है? नहीं, ओबामा जी के भाषण ने हिंदुस्तानियों का दिल जीता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने हिंदुस्तान की नफ्स को छुआ है। नरेंद्र मोदी जी के भाषण ने, और नरेंद्र मोदी जी के भाषण के नाम लिए, नरेंद्र मोदी जी के भाषण ने नाम लिए, उनके नाम लिए, देश के साथ अर्थव्यवस्था को खोलने की बात कही। तो वो बात तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी के लिए भी कही। सी दीज आर डिप्लोमेटिक टर्मिनोलॉजीज। आप उनका 2014 का पत्र उठा के देखिए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मैं तो समझ ही नहीं पाता हूं कि आपने कैसे लाखों लाख लोगों को गरीबी के स्तर से बाहर निकाला। और उन्होंने कहा कि आपकी बोल्डनेस और आपका जो विजन है ठीक है, अनकंपेरेबल है। रीटा जी मैं मान गया, आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे, आप सुन के भी अनसुना कर रही हैं। आपको राष्ट्रपति ओबामा के भाषण तारीफ के लायक लग रहे हैं। पवन वर्मा, मेरा सवाल इस बार आपसे है, क्या इन बीते 3 दिनों में जो करीब 50 से 52 घंटे राष्ट्रपति ओबामा ने दिल्ली में बिताए, क्या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे हिंदुस्तान का सीना चौड़ा हो, सर फक्र से ऊंचा हो? पवन वर्मा, देखिए ये सब जो शब्द जो आपकी जुमले हैं ना, सीना चौड़ा होना, सर का, देखिए मैं नहीं कहता कि इसमें कोई विफलता हुई है। मैं समझता हूं ये अच्छी बात है कि अमेरिका के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो सुदृढ़ हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी ने इस पे एक अच्छी पहल की है। पर बिना तथ्यों को जाने, विदाउट नोइंग द फाइन प्रिंट, हम क्या टिप्पणी करें? किसी भी आप मुद्दे को ले लीजिए, चाहे वो ट्रेड हो, उससे इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जुड़ी है, वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर हम देखना चाहते हैं कि साहब आपने लायबिलिटी पे क्या तय किया है। डिफेंस पे हम जानना चाहते हैं कि जॉइंट प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट पे आपकी क्या राय बनी है। पाकिस्तान पे आपकी क्या सामरिक दृष्टि साथ बनी है। तो हम कई तथ्यों का इंतजार कर रहे हैं, पर हम ये जरूर कहते हैं कि इतना जरूर उपलब्ध हुआ है कि आज नरेंद्र मोदी सार्वजनिक रूप से प्रेसिडेंट ओबामा को कहने के बजाय बराक जरूर बार बार कह रहे हैं। श्रेयाधिचारी, ये इसकी पीछे की वजह क्या, आपको क्या लगता है? क्यों ये बार बार पवन वर्मा घूम फिर के बराक पे आ जाते हैं? उनको शायद क्रिटिसाइज करने के लिए और ठोस चीजें नहीं मिल पा रही हैं। नहीं, ये मैं इस बात से सहमत हूं। आपका कहना कुछ हद तक सही है कि कांग्रेस और गैर बीजेपी जो दल पार्टियां हैं, खास करके अब पवन जी का संबंध जेडीयू से ज्यादा है। अब साधारणतया एक परिस्थिति हमारे देश में एक बड़ी विकट परिस्थिति है, बड़ा खराब है, बहुत खराब है। ये इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। किसी भी दल में अगर मैं बीजेपी में हूं और मैं अगर कह दूं कि किसी कांग्रेसी का भाषण बहुत अच्छा हुआ, अच्छा रहा, तो तुरंत अगर मेरी पार्टी के लोग मुझे शक से देखने लगे, तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ये क्या भारतीय राजनीति की दिक्कत है? हर पार्टी में ऐसा होता है? अमूमन भारत की राजनीति में करीब सभी दलों में ऐसा है। इट्स प्रोबेबली लैक ऑफ मैच्योरिटी कह सकते हैं आप इसको, एक प्रकार का टू बी वेरी टची अबाउट दीज थिंग्स। जैसे कांग्रेस की बात आज हो रही है, मतलब कांग्रेस में तो बड़ी दिक्कतें पैदा कर दी। कांग्रेस के एक बहुत अच्छे पुराने नेता, जो आज के कांग्रेसी नेता पैदा होने के पहले से कांग्रेस में हैं, आप समझ तो गए हैं किसका उल्लेख है। उन्होंने इतना ही कहा कि जो मोदी जी की जो जीत है वो भारतीयता का जीत है, मतलब मोदी जी भारतीयता को समझ सके। अब इस पर आप अगर चर्चा करेंगे तो उन्होंने अच्छा कहा या बुरा कहा, ये दोनों बातें, लेकिन बड़ी दिक्कत हो गई उनको। ही वॉज पुल्ड अप। हाँ, बिल्कुल। और उनकी टिप्पणी किसने की? उनके पार्टी के ऐसे व्यक्ति ने जिनका उम्र इतना नहीं है जितना इनका अनुभव है। मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। ठीक 9 बजने का वक्त हो रहा है, हमारा वक्त में आऊंगा आपके पास सर। 9 बजने का वक्त हो रहा है, जैसे कि हमने आपको वादा किया था कि हम बगैर ब्रेक के सीमलेस बुलेटिन देंगे आज, क्योंकि खास तौर पर इंतजाम हो रहा था। हम 9 बजे की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस के साथ।